everyone. I welcome you all to this channel of Prep for AIL, and today we will be discussing complete preparation roadmap for AIL Lit 2026. I will guide you, I will let you know about the paper pattern, the relevant subjects and the relevant topics, and then we will discuss the preparation strategy. So, first thing is, what is the paper pattern? So, in my previous videos also, I have clarified it that there will be four sections in this particular exam, 50 questions per section, and of 1 marks each. So, it is of total 200 marks paper. There will be no negative marking, which is a plus point for the students, especially for those who are coming from the civil category. I will discuss the reserve seats distribution also, so don't worry about that because last year the seat distribution changed. That's why we have they added the BCom LLB in their college. So we have to discuss about that also. The people who were not connected to me or my channel, they didn't attend the counseling sessions, and that's why even after having the good rank, they were not able to get in AIL Mohali. That's why I'll be there for you all throughout my videos on the YouTube channel so that we can discuss whatever the upcoming step would be. So this is the paper pattern. Now coming next, discussing the relevant topics of the each subject. As I discussed here, that general English section will be there, 50 questions will be there. So these are the important topics of the general English section. Direct, indirect, active, passive, antonym, synonym, phrasal verbs, fixed preposition, foreign words, reading comprehension, grammar, vocab, word usage, word order, subject, verb agreement, idioms, and one word substitution, parajumbles, spelling errors, etc. So this is just a basic thing. You guys, if are in 12th class or who have passed it out, must be knowing about all these concepts. You just have to revise through them, and reading comprehension is something which you guys must have prepared at the time of CLAT. So it would not be a tough task for you because as per the paper pattern, reading comprehension comparatively easy आता है as compared to CLAT exam. So from where I did prepare, मेरे खुद के notes थे जो मैं YouTube channel से पढ़कर बनाती थी. तो I prepared from them. Uh, in my later on, I'll be discussing the plan, the package basically for this particular exam, wherein I would be providing you guys my own notes from which you guys can prepare. So for this, if you do not want to purchase the notes, then you guys can prefer the basic grammar books such as SP Bakshi and Renan Martin. For vocabulary, you have to make a diary and you have to write the words in that daily. I did it from the Rubaika ma'am YouTube channel, CUET Adda 247. At that time, she was regularly taking the vocab sessions, so I prepared from it. I revised all the vocabulary words, everything daily. That's why I was able to like get score in the English exam. उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने होंगे सेक्शन टेस्ट आप लोग लगाओ फुल लेंथ मॉक टेस्ट विच आई विल बी प्रोवाइडिंग यू गाइस सो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिवीजन तभी होता है जब आप मॉक टेस्ट पेपर लगाते हो कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके मेजरली जो ये सेक्शन होता है इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से ही होते हैं ठीक है करंट अफेयर्स इज द मेजर चंक ऑफ दिस सेक्शन स्टैटिक जीके भी होता है लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री लास्ट ईयर एंड उससे पहले भी यही पैटर्न देखा गया है कि स्टैटिक जीके कंपेयर टू करंट अफेयर्स कम होती है सो स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री 10% होती है विच आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अरिहंत बुक 5% आपका 9th 10th ज्योग्राफी अगर आप पढ़ लोगे तो उससे आ जाएगा उससे कवर हो जाता है ज्यादा टफ क्वेश्चंस ज्योग्राफी के नहीं आते हैं पॉलिटी 30% होती है एंड उसके अलावा इंटरनेशनल बॉडीज यूएन बॉडीज स्पेशली वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो 10% कंप्राइज करता है इस पर्टिकुलर सेक्शन में कैपिटल करेंसी आप लोग पढ़ो बुक्स एंड ऑथर्स जो कि न्यूज में है दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस एंड द नेक्स्ट इज जो लैंडमार्क है सपोज जो बहुत फेमस बने उनको आपको याद करना होगा एंड स्पेशली दोज विच आर इन न्यूज देन कमिंग टू द करंट अफेयर्स जैसा मैंने बताया कि 50% सेक्शन करंट अफेयर्स का ही होता है और जिसमें भी करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स का सबसे ज्यादा पूछा जाता है नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज उसके अलावा जो बेसिक आपका जनरल नॉलेज होता है थोड़ा बहुत साइंस के क्वेश्चन भी आ सकते हैं बट
अभी तक ये देखा गया है कि इतना ज्यादा साइंस से नहीं आता है, ज्यादातर स्टैटिक जीके आता है और करंट अफेयर्स ही आता है, डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स काफी आता है। तो आई प्रिपेयर्ड इट फ्रॉम द यूट्यूब चैनल्स ओनली। करंट अफेयर्स में डेली करती थी, आई वॉज कंसिस्टेंट इन दिस। तो अगर आपको करंट अफेयर्स डेली अच्छे से प्रिपेयर करना है तो आपको भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। एंड लेटर ऑन आप जीके टुडे वगैरह की जो मैगजीन्स होती हैं वो भी रेफर कर सकते हो। But the most important part is for the revision, you guys have to revise it daily and go through the MCQ guides. Especially, I would suggest you to go through the universal MCQ guide. उसमें आपका static portion cover हो जाएगा। और जो करंट अफेयर्स है उसके लिए आप डेली कोई भी यूट्यूब चैनल से क्वेश्चंस लगाओ, एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाओ। और ट्वेल्थ की लीगल एनसीईआरटी बहुत हेल्प करती है। इवन इन लॉ सेक्शन जो होता है इसमें, वो पूरा ही ट्वेल्थ लीगल एनसीईआरटी से आता है। सो यू गाइज हैव टू लर्न इट बाय हार्ट बेसिकली। ट्वेल्थ लीगल एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम। Coming to the law aptitude section, as I just told you कि legal NCERT 12th की बहुत important है law aptitude section के लिए। लेकिन important part इसमें ये है, unlike the questions that we get in CLET para based question जो होते हैं, इसमें हमें one liners आते हैं, थोड़ा बहुत हमें आ सकते हैं problem based, but they would be one liner. There will be a problem in one line, the some facts and the decision on it, not the paragraph based questions जैसा कि CLET में पूछा जाता है। तो देयर विल बी वन लाइनर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है और ये पैटर्न चला आ रहा है, ठीक है। आई विटनेस्ड इट, माई स्टूडेंट्स विटनेस्ड इट, सो इट इज, इट विल बी वन लाइनर्स। देन what all they ask in the law aptitude section, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आ जाता है, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मेजर चंक होता है लॉ एप्टीट्यूड सेक्शन का फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पार्ट। अदर देन दैट यू गाइज शुड रेफर, आई वुड सजेस्ट यू कि आप इम्पॉर्टेंट, द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी के आर्टिकल्स आप याद रखो, लैंडमार्क केसेस आप याद रखो, दैट वुड श्योरली हेल्प यू। सो ये जो सब्जेक्ट है इसको आप रेडी कर सकते हो, लीगल एप्टीट्यूड बाय एपी भारद्वाज। इस बुक के अंदर डिफरेंट सेक्शंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, तो वहां से आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ अपना प्रिपेयर कर सकते हो। लैंडमार्क जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो अच्छे से कर लेना। उसके बाद ह्यूमन राइट कमीशंस, ह्यूमन राइट कमीशंस बेसिकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू रेफर द कमीशंस हियर, जैसे आपका माइनॉरिटी कमीशन हो गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन हो गया, ऐसे वेरियस कमीशंस जो इंडिया में है और इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करती हैं, यू गाइस शुड रेफर देम। और वो ट्वेल्थ लीगल एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी, आई थिंक लास्ट चैप्टर है जो कमीशंस के ऊपर है। तो आपको ये रेफर करना चाहिए बिकॉज व्हेन आई वाज गिविंग द एग्जाम कमीशन से काफी क्वेश्चंस आए थे और बाद में भी स्टूडेंट्स ने बताया था लेटर ऑन इन 2024 एंड 2025 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम द कमीशंस। देन क्वेश्चंस लाइक हु ड्राफ्टेड आईपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, ऐसे क्वेश्चंस वन लाइनर में जनरली पूछ लिए जाते हैं। तो आपको, अगर आप यूनिवर्सल एमसीक्यू गाइड से प्रैक्टिस करोगे तो वहां से आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। देन कमिंग टू द बेसिक नॉलेज ऑफ टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ। अब इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जाम्पल विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द फाइनेंशियल इमरजेंसी। लेकिन टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ से डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आता है, कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा बहुत आ सकता है बट जनरली नहीं आता है। इसमें आपको प्रिंसिपल, फैक्ट एंड डिसीजन का क्वेश्चन आता है। सो there will be one liner principle, facts will be there and you have to decide whether someone would be liable for culpable homicide or not, whether someone would be liable, whether there will be breach of contract or not, and whether someone would be liable to pay the compensation under the tort law. So these type of questions will be there from these three sections in the law aptitude. From where I prepared it, same legal aptitude by AP Bhardwaj, टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, चारों आप इसी एक बुक से कवर कर सकते हो। देन पॉलिटी, पॉलिटी आपका इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पॉलिटी लो एप्टीट्यूड के सेक्शन में भी आता है और जनरल नॉलेज के सेक्शन में भी आता है और मैक्सिमम क्वेश्चन जुडिशरी से आते हैं, ठीक है, जुडिशरी और पार्लियामेंट। व्हेन आई वाज गिविंग द एग्जाम देयर वर मेनी क्वेश्चंस from that part. How many seats are there in Lok Sabha? How many seats are there in Rajya Sabha? Okay, so पॉलिटी से पार्लियामेंट और जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, विच आई प्रिपेयर्ड फ्रॉम माई ओन नोट्स एंड लीगल एप्टीट्यूड बाय एपी भारद्वाज।
कमिंग टू द लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स, तो लीगल टर्म्स एंड मैगजीम्स जो होते हैं वो मेरे पास खुद की पीडीएफ्स थी एंड एक बुक थी जिससे मैंने कवर किया था. I'll be providing all of this in my package if you guys want to purchase that. So for it, what is the good idea is make a list of all the relevant legal maxims जो भी आप पढ़ते हो. उसका एक लिस्ट बनाओ. लिस्ट बनाने के बाद उसको डेली रिवाइज करते रहो. उसका प्रिंट निकाल के रखो और उसको अपनी स्टडी टेबल के ऊपर लगा लो. रिवाइज इट डेली बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है और इसको जब तक जितना अच्छे से रिवाइज करोगे उतना अच्छे से आपको याद हो जाएंगी. इतनी टफ नहीं होती है ये, इजी ही होती है. You guys would be able to cover it. Then coming to the current Supreme Court and the first ones. तो लीगल न्यूज से अगर पूछा जाता है तो लीगल न्यूज से लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था व्हेन आई गेव द एग्जाम. बट हाँ, लीगल न्यूज से भी क्वेश्चन आते हैं फॉर विच यू गाइज कैन डू कवर द लास्ट 6 मंथ का लीगल न्यूज, जिसमें से आपका करंट वंस पूछा जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, हु इज द करंट सुप्रीम कोर्ट जज या 53rd सुप्रीम कोर्ट जज, the questions like that. And first ones, who was the first women judge of Supreme Court, who was the first women judge of High Court, ये क्वेश्चंस आपका लीगल न्यूज में कवर हो जाता है. देन लास्ट वन इज लैंडमार्क जजमेंट, स्पेशली ऑन द फंडामेंटल राइट्स. KS Puttaswamy judgment, important one. Indra Shawnee judgment on the reservation system. Okay, so these are some of the important judgments. Landmark judgments are mandatory to be learned. So please do refer them, and for which I basically had my own notes जो मैंने prepare किए थे. You guys can also Google it. All the landmark judgments will be there on the Google. अगर आप करोगे तो आपको कोई भी चैनल से मिल जाएगी. ज्यादातर आप उसमें कवर हो जाती है, बट हाँ कुछ जो स्पेसिफिक है, रेलिवेंट है, if you guys want to study, then I would suggest you to do study them. Coming to the last section, that would be of mental ability. I have divided this section into two parts: quantitative aptitude and the logical reasoning. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बच्चों को काफी डर लगता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द आर्ट बैकग्राउंड एंड दे थिंक कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड उनसे नहीं होगा, या फिर वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कवर ही नहीं करते हैं और बिकॉज दे सोलली रिलाई ऑन लॉजिकल रीजनिंग कि हम उससे अपना मार्क्स बना लेंगे. लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है. Half 50% was quantitative aptitude, 50% was logical reasoning. So कौन is must. ठीक है. इसके लिए मैंने YouTube चैनल से डेली सभी जो सेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी टॉपिक है स्पीड टाइम डिस्टेंस, SICI, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एवरेज टाइम इन वर्क, टैबुलेशन, प्रोबेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. ज्योमेट्री पर मत जाना, ज्योमेट्री से कुछ नहीं आता है. ठीक है. आपका मेंसुरेशन से टॉपिक आ सकता है, हाँ उससे आपका कवर हो सकता है. जनरल क्वेश्चंस होंगे, बेसिक क्वेश्चंस. बट हाँ, आप ज्यादा ये लीनियर इक्वेशंस वगैरह नहीं आती है, इतना उसमें नहीं ज्यादा डीप डाउन पूछा जाता है. बेसिक क्वेश्चंस यही टॉपिक से होते हैं, फॉर विच आई हैड माई ओन नोट्स, क्योंकि मैंने एक एक टॉपिक को यूट्यूब से कवर किया था. उसके बाद उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए थे गूगल से, पीडीएफ्स वगैरह निकाल कर, और जो भी प्रैक्टिस सेशंस यूट्यूब पर पड़े होते हैं उससे मैंने अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे. तो उसके बाद मेरा काफी अच्छा हो गया था कॉन्ट्स. तो आई वाज लाइक परफेक्ट इन दैट पार्ट. एंड लॉजिकल रीजनिंग में भी मेरा अच्छे से मैंने यूट्यूब से ही किया था. सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप यूट्यूब से रेफर करो. काफी सारी वीडियोस पड़ी होती हैं हर एक पर्टिकुलर टॉपिक की, आप उससे कवर करोगे, इजीली हो जाएगा. बट द मेन थिंग इज कंसिस्टेंसी एंड प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस इन कॉन्स्टेंट लॉजिकल रीजनिंग. प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चंस, टॉप फॉर्मूलाज तो चलो एक बार आप रिवाइज कर सकते हो, लेकिन आपको जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं क्वेश्चन करने की, वो डेली प्रैक्टिस से ही आएगी. सो प्लीज practice the questions daily. Then the second part of mental ability section is reasoning, logical reasoning. इसके लिए भी मैंने बताया आपको, YouTube से ही मैंने ये कवर किया था, and I have all the notes of this particular section also. So these are the important topics: counting figures, dice, blood relation, series, setting arrangement, the important thing, setting arrangement, order and ranking, alphabet problems, analogy, direction test, clock and calendar. Important topic है clock and calendar. बच्चे ये छोड़ देते हैं, especially calendar. वो solve नहीं होता है, but it is an important part. Coding, decoding, cube cutting, syllogism, statement assumption, cause and effect, strong and weak argument. One more thing I want to point out here. CR जो होती है, critical reasoning, पहले नहीं आती थी, लेकिन 2024 एग्जाम से we are witnessing it in the question paper.
तो आपका जो सीबीटी मोड टेस्ट होता है इसमें बच्चों को लगता है कि उनके पास पूरा टाइम होगा, देयर विल बी 2 आवर्स, बट नहीं। मतलब पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आप जितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहो उतना कर सकते हो, देयर विल बी 2 आवर्स। सो यू जितनी अच्छी आपकी स्पीड होगी उतना अच्छा आप टाइम दूसरे सेक्शन में दे पाओगे। सपोज आपकी अच्छे से आपने करंट अफेयर्स याद किए हुए हैं, सो यू गाइस कैन डू दैट सेक्शन इन 10 मिनट्स। आफ्टर दैट यू कैन कम टू द मेंटल एबिलिटी सेक्शन, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स नहीं है सेक्शन का। यू विल बी हैविंग 2 आवर्स। सीबीटी मोड में टेस्ट होता है। तो वहां पर सिलोजिज्म और कॉज एंड इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग वीक वीक आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन पहले नहीं आते थे लेकिन अभी आने लगे हैं। सो आई हैव एडेड इट इन द रेलेवेंट टॉपिक्स, प्लीज डू प्रिपेयर फॉर दैम। सिलोजिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ये अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि ये एक इससे मेजर क्वेश्चंस आते हैं, मेजरली क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। और नाउ कमिंग अबाउट द score. So always try to score maximum. But as you know that there are seats distribution for the civil category candidates and the army category candidates. Army category candidates के लिए there are 75 seats, but now the seats have been increased. Okay, so the main part is this: the seats have been increased, and I have already prepared a video on this particular thing last year only, when I discussed it कि कैसे बीकॉम एलएलबी में सीट्स आई हैं और कैसे बीएलएलबी की सीट्स को बढ़ा दिया गया है। तो इन टोटल अगर अभी देखा जाए आज के टाइम पर ऑल इंडिया सिविल कैटेगरी की टोटल सीट्स अलोंग विद द बीकॉम एलएलबी का टेस्ट, सॉरी बीकॉम एलएलबी कोर्स, 9 सीट्स हो गई है। पहले सिर्फ 5 होती थी। अब बीएलएलबी में 6 सीट्स आ गई हैं और बीकॉम एलएलबी में 3 सीट्स एक्स्ट्रा आ गई हैं। सो दैट इज द पार्ट। तो वो मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है, यू गाइस कैन रेफर दैट फॉर द सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन थिंग। अभी मैं इसके ऊपर कोई फर्दर वीडियो नहीं बना रही हूँ ऑन द सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेक्शन, क्योंकि देयर कैन बी चेंजेस। चेंजेस आ सकते हैं लास्ट ईयर जैसे एंड टाइम पर आफ्टर द एग्जाम उन्होंने सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया था। आफ्टर द एग्जाम उन्होंने बीकॉम एलएलबी का कोर्स इंट्रोड्यूस किया था। दैट्स आई एम वेटिंग फॉर दैट थिंग, कि लेट्स वेट फॉर दैट। और तब तक के लिए you guys can refer the last video. I have added the important, sorry, the relevant thing, that is the score. तो कितना आपका कट ऑफ जाता है 2025 की अगर हम बात करते हैं, तो 2025 में BA-LLB में 125 से 135 पर मेरे स्टूडेंट्स का हो गया था सिलेक्शन इन द आर्मी कैटेगरी। एंड both the courses it was this marks only, 125 से 135 के बीच अगर आप स्कोर कर रहे हो तो BLLB या BCom LLB में से कोई भी एक मिल जाएगा। यहाँ पर ये बच्चों को लगता है कि BCom LLB उनको तब मिलेगा जब कम मार्क्स होंगे, बट नो, दिस इज अबाउट द प्रेफरेंस। अगर आपका स्कोर कम भी है लेकिन आपका बीकॉम एलएलबी में प्रेफरेंस है, ठीक है, योर फर्स्ट प्रेफरेंस इज बीकॉम एलएलबी, देन बीकॉम एलएलबी विल बी अलॉटेड टू यू फर्स्ट, इवन इफ यू हैव स्कोर्ड 120 एंड द वन हु हैज स्कोर्ड 125, अगर उसका फर्स्ट प्रेफरेंस ये है बीएलएलबी है तो उसको फिर बीएलएलबी पहले मिलेगा। सो इट्स अबाउट योर प्रेफरेंस एंड नॉट अबाउट योर स्कोर। बट हाँ, स्कोर एक टाइम पर यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जब बीएलएलबी की सीट्स फुल हो गई है उसके बाद वो स्कोर वाली चीज के ऊपर आएंगे कि हाँ बीएलएलबी की सीट्स अब फुल हो गई है, किस किस का फर्स्ट प्रेफरेंस बीएलएलबी है, देन दे विल सी कि जिसका स्कोर ज्यादा होगा उसको उसका फर्स्ट प्रेफरेंस बीएलएलबी मिल जाएगा। तो ये पार्ट को लेकर कंफ्यूजन जो रहती है वो मैं काउंसलिंग के टाइम पर भी क्लियर करूंगी, बट फॉर नाउ यू गाइज शुड अंडरस्टैंड दिस कि ऐसा नहीं है कि स्कोर ज्यादा होगा या कम होगा तो उसके अकॉर्डिंग बीएलएलबी बीकॉम एलएलबी मिलेगा। तो 125 प्लस अगर आप स्कोर कर रहे हो तो इट इज सेफ स्कोर फॉर यू फ्रॉम द आर्मी कैटेगरी फॉर बोथ द कोर्सेज बीएलएलबी एंड बीकॉम एलएलबी। 2024 तक दो कोर्स नहीं थे, सिर्फ बीएलएलबी का कोर्स होता था। सो इट वाज बिटवीन 114 टू 112 स्कोर आउट ऑफ 200। एंड 2023 में व्हेन आई गिव द एग्जाम 120 प्लस 121 पर you were guys were easily getting in। तो आई वुड से 110 से 120 के बीच यू गाइज कैन कंसिडर कि आपका आर्मी कैटेगरी में हो गया था एट दैट टाइम। बट नाउ एज competition has increased, two courses have been introduced, so please do consider the scoring 125 plus। देन ऑल इंडिया सिविल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 170 प्लस पर आप टॉप 5 या 4 स्टूडेंट्स में आ जाओगे, इफ यू गाइज आर गेटिंग 170 प्लस स्कोर। तो
कंसिडरिंग दिस फैक्ट, कमिंग टू 2025 में दो कोर्सेज आए, बी एल एल बी, बी कॉम एल एल बी। बी एल एल बी में द गाय हु स्कोर्ड 157 was having the rank 19 and the guy who scored 162 marks was having the rank 14. Now दोनों में रैंक किसकी अच्छी है? जिसको बीकॉम एलएलबी मिला है, स्टिल उसको बीकॉम एलएलबी मिला रादर देन बीएलएलबी, क्योंकि उसका प्रेफरेंस बीकॉम एलएलबी था। ठीक है, इवन इफ द गाय वाज हैविंग 14th रैंक इन द एग्जाम, बट उसका प्रेफरेंस ही बीकॉम एलएलबी था, तो उसको वही मिला पहले। एंड द गाय हैविंग फर्स्ट प्रेफरेंस एज बीएलएलबी इन हिज एग्जाम स्कोर्ड वाज हैविंग रैंक 19, तो उसको बीएलएलबी मिला। So it's just about the preference and not the score. This is the exact marks which I am telling you because these two were my students. Oh, so I asked them, then they informed me this. Coming to 2024, 140 से 152 के बीच बच्चों का स्कोर गया था। Some students were there who took my mock test and everything. तो उसमें से भी काफी बच्चे थे। Then 2023 में 165 से 175 के बीच स्कोर था, क्योंकि 175 पर AIR 1 was there when I scored 168 marks out of 200 I was AIR 3. So this was the pattern basically for the scores. तो ये आपको अभी तो 2025 का ही मेजरली कंसिडर करना है, क्योंकि बिकॉज सीट्स हैज इंक्रीज्ड, तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन guys should score maximum. Now coming to the study hours and what should be your strategy for the preparation. Initial phase में you guys can start working on it 3 to 4 hours because the students who are in class 12th have their boards. तो बोर्ड्स एग्जाम भी हैं आपके और आपको ये भी प्रिपेयर करना है, तो स्टार्टिंग में इनिशियल डेज में जब तक आपके बोर्ड्स एग्जाम नहीं हो जाते, टिल देन यू गाइज शुड गिव 3 to 4 hours per day. If not per day, then at least in 2 days. Then in mid phase, after your exams, you guys should give 4 to 5 hours for studying, and then final phase mein you guys have to sit on it because you guys should revise each and every section. Revision is mandatory, revision is must. Without revision you won't be able to do the questions. So consistency is better than long study hours. If you are consistent studying 2 hours daily, then it would be better rather than sitting once in a week and studying 7 to 8 hours. Weekly revision is mandatory, especially for the current affairs, idioms and phrases, vocabulary, formulas, and legal maxims. ये 4-5 चीजें हैं जिसका आप वीकली रिवीजन जरूर ही करो। ठीक है, करंट अफेयर्स एक हफ्ते की हर डेली अगर लिखते हो तो हर हफ्ते उसको रिवाइज करो। देन सेक्शनल टेस्ट दो ऑन द वीकडेज। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो। सपोज आपने आज एवरेज का टॉपिक कवर किया तो कल आप एवरेज का टेस्ट दे दो, नेक्स्ट रेशियो प्रोपोर्शन का टॉपिक कवर कर लो। तो सेक्शनल टेस्ट देने से ये फायदा हो जाता है कि आपका जो छोटा मोटा टॉपिक्स होता है, या टॉपिक वाइज टेस्ट दे दो। ठीक है, ये भी अच्छा आइडिया है। उससे आपका रिवीजन भी हो जाता है और आपकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाते हैं। देन अवॉइड ओवर रीडिंग। मैंने एक स्टूडेंट को देखा, शी वॉज like she had a lot of material. Basically she was referring to SSC books. I denied her कि please don't do this क्योंकि ओवर रीडिंग नहीं करनी है। इतना सारा कंटेंट you guys won't be able to mug up. तो ओवरलोड नहीं करना है अपने आप को क्लैट मटेरियल के साथ स्पेसिफिकली, क्योंकि क्लैट में आपको स्पेशली जो करंट अफेयर्स होता है वो बहुत ज्यादा आपको कवर करना होता है। आपको पूरा हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। ठीक है, एक टॉपिक अगर आया तो उसका पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ना पड़ता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत आप जानते हो, डेली करंट अफेयर्स कर रहे हो, रिविजन कर रहे हो, दैट वुड बी इनफ। स्टिक टू वन सोर्स। ठीक है, बच्चे काफी सारे सोर्सेज रेफर करते हैं कि करंट अफेयर्स यहाँ से भी कर रहे हैं, वहां से भी कर रहे हैं, बट डोंट डू दैट। स्पेशली करंट अफेयर्स का मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेजर चंक होता है ये एग्जाम का। 50 मार्क्स समझो कि करंट अफेयर्स के ही होते हैं। तो स्टैटिक जीके थोड़ी बहुत होती है, बेसिक क्वेश्चन होते हैं, सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स जिसने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया है वो नहीं कर पाता, जिसने किया है वो कर लेता है। तो स्टिक टू वन सोर्स। देन फाउंडेशन ऑफ द स्टैटिक जीके इज अरिहंत जीके बुक। इजी, इजी टू रिवाइज, इजी टू रीड। ठीक है, आराम से फटाफट 2-3 बार रीड करो, फिर रिविजन्स करो। ठीक है, हाईलाइट कर लो, अगर नोट्स नहीं बना सकते हो तो रेलेवेंट सेक्शन हिस्ट्री का, जीके का, इसको प्रिंट निकाल के उसको हाईलाइट करके रखो, जो भी आप रिविजन कर रहे हो, दैट पार्ट। एंड कमिंग टू द रीजनिंग एंड क्वांट्स, देन फोकस ऑन एक्यूरेसी रादर देन the questions.
आई एम सेइंग दिस बिकॉज रीजनिंग एंड कॉन्ट्स में आपका जब तक सही नहीं होगा तब तक आपका वो क्वेश्चन गलत ही है। तो अगर आपने जल्दबाजी के चक्कर में सारे क्वेश्चंस करने के लिए फटाफट आपने कर दिया कुछ भी, लेकिन आपने एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, तो आपका पूरा सेक्शन खराब हो जाएगा। सो रादर देन क्वेश्चंस, फोकस ऑन एक्यूरेसी। एक बार एक्यूरेसी बढ़ जाएगी तो अपने आप आपकी स्पीड भी सही हो जाएगी। देन मॉक टेस्ट की बात करते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों ने टेलीग्राम पर मैसेज भी किए हुए थे मुझे कि मैम मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दो, मॉक टेस्ट प्रोवाइड करो। सो फॉर दैट आई ऑल्सो हैव दिस स्कीम। बट फर्स्ट when to start the mock test papers? Start early with the section wise and topic wise test. वीकडेज में आप ये कर सकते हो क्योंकि 2 घंटे का ये पूरा नहीं होने वाला है। आधे आधे घंटे के सेक्शन वाइज टेस्ट लगा लो और 10 मिनट वाले टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लो। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप मार्च के एंड से स्टार्ट करो, या फिर आई वुड से कि मार्च, आई एम सेइंग दिस बिकॉज मार्च में काफी बच्चों के एग्जाम्स हैं, 12th बोर्ड्स हैं, तो मार्च तक वो खत्म होंगे। तो जैसे ही आपके बोर्ड्स खत्म होते हैं तभी आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसके स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, but for that thing you guys should revise the current affairs of previous months, for example November 2025, December 2025। ठीक है, अगर आपने तभी मॉक नहीं लगाए हैं तो अभी अगर आप लगा रहे हो तो करंट अफेयर्स रिवाइज करके लगाना, अदरवाइज स्कोर नहीं बनेगा। मॉक एनालिसिस इज नॉन नेगोशिएबल। वाई सो? बिकॉज बच्चे मॉक एनालिसिस करते नहीं हैं, उनको पता ही नहीं होता उनके कितने क्वेश्चंस गलत हैं कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर ये नहीं पता होगा तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि विच टॉपिक यू शुड गो थ्रू अगेन। तो फॉर दैट रीजन मॉक एनालिसिस करो, पता करो कि कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं। जो टॉपिक्स वीक है उसको फिर से पढ़ो, रिवाइज करो और उसको फिर से टेस्ट दो। पहले टॉपिक वाइज टेस्ट दो, फिर फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। एंड कंसिडरिंग दिस, चेक करो कि आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक में प्रीवियस टाइम से इस टाइम कितना मार्क्स बढ़ा है। ठीक है, वो स्कोर इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप सेम स्कोर पर अटके हुए हो। तो यही इसकी स्ट्रेटेजी है कि आप मॉक एनालिसिस करो। मॉक करने के बाद मॉक को एनालिसिस करो, टॉपिक्स निकालो, क्या क्या मेरे वीक टॉपिक्स हैं, क्या क्या मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, और अकॉर्डिंगली अपनी जो स्टडी आवर्स है वो डिवाइड करो। देन कॉमन मिस्टेक्स बाय रिपीटर्स, इग्नोरिंग द बेसिक्स। बच्चे सोचते हैं ग्रामर में अरे ये तो मुझे आता है, एक्टिव पैसिव तो मुझे आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो मुझे आता है, मेरे को क्या रेफर करने की जरूरत है, तो वो बेसिक्स इग्नोर कर देते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं, फिर वो गलत हो जाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप एक बार रिवाइज करो उसके बाद आप क्वेश्चंस की तरफ जाओ। मॉक एनालिसिस नहीं करते, इररेलेवेंट मटेरियल पढ़ने लग जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एक बच्ची थी वो एसएससी का पढ़ने लग गई थी फॉर दिस एग्जाम, एंड शी वाज़न्ट एबल टू गेट थ्रू दिस एग्जाम क्योंकि उससे ज़्यादा ही मटेरियल अपने पास रखा हुआ था टू स्टडी। तो इतना भी नहीं कि आप इररेलेवेंट चीज़ें पढ़ रहे हो। फ्लैट मटेरियल के ऊपर नहीं जाना है, जितना मैंने स्पेसिफिक टॉपिक्स बताए उतना करो। ठीक है, उसके बाद रिवीजन नहीं करना। कंसिस्टेंसी का मतलब यही है कि आप रिवीजन डेली करते रहो। एटलीस्ट अगर आप कुछ न्यू नहीं पढ़ रहे हो तो रिवीजन तो करो। तो लेट रिवीजन अगर आप करोगे तो पिछला भूल जाओगे आप, कुछ फायदा नहीं होगा पढ़ने का। तो रिवीजन कंसिस्टेंटली करते रहो, यही कॉमन मिस्टेक्स होती है। अगर आप यही सब चीजों का ध्यान रखोगे तो यू गाइस वुड बी एबल टू स्कोर वेल। नाउ कमिंग टू द this package, the complete mentorship and mock package. So for this, I have prepared this package wherein I will be providing you 20 full-length mock test papers along with the answer keys and important PDFs. Subject-wise study material, because मैंने अभी आपको बताया I have my own notes of the particular subjects or the sections. So I'll be providing them also. Other than that, personal mentorship whenever you guys would be needing that. Mock analysis, which I'll be providing through my Gmeet or the online Google मीटिंग सेशंस, एंड काउंसलिंग टिल द फाइनल एडमिशन। ये मैंने लास्ट ईयर भी वीडियोस काउंसलिंग के लिए यूट्यूब पर डाले थे, अभी भी अब मैं डालूंगी। सो इट वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। तो you guys can refer the channel only for the counseling thing. Because the guy who's I'm telling about you, this guy, the one who scored 157 marks in BLLB, he was having rank 19. He said, मैम आई डोंट थिंक मुझे ये BLLB मिलेगा या कोई भी कोर्स मुझे मिलेगा, एंड आई एम नाउ परचेजिंग द स्टडी मटेरियल फॉर द क्लैट एग्जाम। I said to him, please do not worry about this. Let's wait for till 16th of August.
ठीक है, 16th of August was the last day. So for the counseling, I suggested him to wait till 16th of August. Because I had the information that seats are still distributing, and the guy can get through the AIL. So I suggested him to wait, and he waited. And ultimately he got in BA LLB rather than BCom LLB. तो उसका कम मार्क्स होते हुए भी उसे BA LLB मिल गया. Instead of this, the guy who was having a good rank than this student wasn't able to go in AIL Mohali. And the reason behind that is कि उसने counseling session सही से नहीं देखे. ठीक है, तो काउंसलिंग सेशंस को ध्यान से देखो. जो आपको पूछना है वो पूछो. ऐसा नहीं है कि आई वुड नॉट रिप्लाई यू गाइस ऑन टेलीग्राम चैनल. आई डू रिप्लाई. तो वहां पर आप पूछो, या फिर यूट्यूब में भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो अपने डाउट्स. तो काउंसलिंग इज मैंडेटरी थिंग, बिकॉज बच्चे छोड़ देते हैं. ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पर बच्चे छोड़ सोचते हैं अब तो होगा नहीं हमारा, लेट्स लीव इट. बट वो हो जाता है अल्टीमेटली इफ यू आर विद द राइट person, if you are in contact with the right person. So this is the part. So this whole package with 20 full length mock test and everything, this would be in 5,499 rupees, all in one program till admission. Uh, Now considering the students concern कि मैम हम पूरा पैकेज नहीं परचेज कर सकते हैं, we only want to purchase the full length mock test. For that part, I have prepared this also. Per full length mock test, I would be taking 200 rupees. And if you guys want 5 tests, then you guys can pay accordingly 20 tests, 10 tests paper. तो accordingly आप इसको divide कर सकते हो. फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर्स को ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न स्ट्रिक्टली फॉलोड. ठीक है, क्योंकि आई हैव गिवन द एग्जाम्स, आई हैव मेंटोर्ड सो मेनी स्टूडेंट्स थ्रू आउट प्रीवियस years. So considering that fact, you guys can take my full length mock test papers. देन क्वेश्चंस मैंने सभी लॉ, जीके, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस डाले हैं. और करंट अफेयर्स का स्पेशली मैं बताऊं तो मैंने 2025 से करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट पेपर में डाली है. इट्स नॉट कि मैं लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स दे रही हूँ सिर्फ. मैंने पिछले पूरे 1 साल की करंट अफेयर्स डाली है अच्छे से, और रेलिवेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चंस भी डाले हैं. डिटेल्ड आंसर कीज एंड सॉल्यूशंस आई विल बी प्रोवाइडिंग. एंड एग्जाम लेवल डिफिकल्टीज थोड़ा सा मैंने ज़्यादा रखा है एज कम्पेयर टू AIL एग्जाम, बिकॉज लास्ट टाइम भी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रखा था. स्टूडेंट्स वर लाइक मैम हम पेपर तो बहुत इजी आया था, हमने मॉक टेस्ट से काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की. सो मैं थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ सो दैट आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हो सको. ओके, बिकॉज पिछले बार जो कॉज एंड इफेक्ट ये सब क्वेश्चंस होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के, वो एग्जाम में आ गए. पहले वो नहीं आते थे, मैंने मॉक टेस्ट पेपर में डाले हुए थे, तो बच्चों ने प्रिपेयर किया तो अल्टीमेटली वो एग्जाम पेपर में कर पाए क्वेश्चन. सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप फुल लेंथ मॉक लगाना स्टार्ट करो. अगर आप पूरा पैकेज नहीं परचेज कर सकते हो तो आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट परचेज करो, बिकॉज मॉक टेस्ट पेपर लगाना मैंडेटरी है. इट्स समथिंग विच कैन नॉट बी लाइक negotiated. So this is all about the complete preparation roadmap for the AIL at 2026. Guys, I think ये वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए. If yes, then please do comment in the section. Please do comment in the comment section box. Like this video and please share it to the students who want to give AIL at 2026. So thank you so much. This is it for this session. Bye bye.